your lecture. I'm sharing a screen. Just look into the screen now. Okay. Once we will done with the lecture, we are going to share the PPT with you also. So don't worry about it. So yesterday it was introductory lecture. Right now we are starting with the practical lecture. So yesterday only I explained you lots of things, that why, for what purpose. There are lots of reasons behind income tax. Now, next section we are going to start with a brief. The coming presentation are with the lots of points. In that, we are going to talk about introduction, brief history of income tax, heads of income, important terms, income tax rates, exemption, deduction. Okay. Now, one thing you have to understood, that whenever we are starting with the tax or something else, there are always history. Like that, I told you that Income Tax Act was came into 1961. Then after, when we talk about this one, direct indirect tax, at that time also I told you what are the changes made in these years by the government. Okay. Heads of income. Like yesterday I told you, it's too much easy. There are 5 heads of income. If you have book and pen, just write it down right now, whatever I'm telling you. Just take a notebook and pen. Take notebook and pen right now. There are 5 heads of income. There are 5 heads of income. Number 1, income from salary. Income from house property. Second one, Capital. income from, number 1, income from salary. Number 2, income from house property. These are all the part of your next coming practical sums. So write it down. Third one, income from business or profession. Income from business or profession. Then after, you are having income from short term, long term. Income from short term, long term. Okay. इसके अंदर वर्ड है, मैं अभी वो भूल गई हूँ. I will tell you in the next. And last one, income from other sources. Income from other sources. Okay. Now next we are moving. Next you have to study income tax rate, exemption and deduction. Last one, some useful tips and conclusions. So leave about that one. Now you have next one, introduction. What is tax? Why it is required? Tax is a part of an individual's earning which is required to be paid to the government in order to generate revenue. Simple. Why we are imposing tax on these peoples? They want to generate revenue. By revenue, they will come to know that how much money they are earning. And tell me one thing, students, where they are using this revenue? Where they are using this revenue? जिनका environment शांत है वो लोग unmute करो और बात करो. Where we are using this revenue? Simple है. Why we are using tax? पैसे Development of country, ma'am. Perfect. Development of country. Like, give me example of that. Welfare में मैम अगर कोई मतलब कोई डेवलपमेंट जैसे कोई हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, बहुत सारे एग्जांपल है, जरा सोचो. हेल्थ फैसिलिटीज है. रोड्स, ओके. इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिल्डिंग, एजुकेशन. गर्ल्स को एजुकेशन है, जो 10th तक फ्री में रहता है गवर्नमेंट स्कूल्स में. गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस है जो फ्री में एजुकेशन देते हैं. देन आफ्टर योर गवर्नमेंट सर्विसेज के जहाँ पे आपको गवर्नमेंट सर्विस लग जाती है. भले ही देखो हम लोग 100% तो टैक्स पे नहीं करते ना. वी आर यूजिंग द सम पार्ट ऑफ टैक्स ना. जैसे कल हम लोगों ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात की थी. गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरा का पूरा सैलरी देता है कि उसका कुछ पार्ट देता है? आर्ट.
परफेक्ट। सो उस रेवेन्यू का यूज ये लोग किस लिए करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कंट्री का डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, देन आफ्टर लोगों को फ्री में कुछ स्कीम्स देते हैं, पेंशन पीपल होते हैं, गवर्नमेंट के दुनिया भर के पेंशन वाले लोग होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं जिनको फ्री में सारी अकोमोडेशन मिलती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं जिनको सारी की सारी चीजें फ्री में मिलती है। So there are lots of use of your revenue. It is a mandatory liability for every citizen of the country. There are two types of taxes in India. कल ही हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था. There are two types of taxes in India. Number one, direct tax. Second one is indirect tax. And income tax is a part of direct tax. Perfect. Why tax is required? Income tax is the main source of income for the government tax. Money is used in initiating various welfare and other activities. जैसे अभी हम लोगों ने बात की, समझ में आ रहा है? Yes. हम लोग सिर्फ पीपीटी को देखेंगे नहीं, पीपीटी का अंदर का जो मेन एक्सप्लेनेशन है उसको अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, नेक्स्ट वन. रीजन क्या क्या है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही, जो अभी हम लोगों ने देखा. देखो, okay, providing education through government schools where fees is less or negligible, subsidy on cooking gas, fertilizers and other essential commodities, salary and pension to lakhs of government employee, national security and infrastructure development. हम लोगों ने जो जो डिस्कस किया उसका कितना परसेंट यहाँ पे अवेलेबल है बताओ मुझे. हम लोगों को पता भी नहीं था कि ये नेक्स्ट पीपीटी है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने अपने कॉमन सेंस से बोल दिया ना कि क्या क्या किस किस चीजों के लिए होती है. सो ऑलवेज कीप इन द माइंड कि हमको कुछ चीजों का कॉमन सेंस रखना होगा कि गवर्नमेंट किस चीज के लिए क्या करती है. गधा मजूरी उतनी ही करने का जितना जरूरी है, खुद का नॉलेज भी है, खुद का कॉमन सेंस भी है. नेक्स्ट वन, वी हैव टू गो थ्रू द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इनकम टैक्स. The origin of the income tax dates back to the ancient India, as found mentioned in the ancient books such as Arthashastra and Manusmriti. Tax का जो concept है, was basically Arthashastra and Manusmriti, ये जो old ancient books है, इसके अंदर ज्यादा देखा गया है. According to Manusmriti, artisans used to pay 1/5. Artisans मतलब कौन होते हैं? Who are the artisans? परफेक्ट. जिनके अंदर कुछ आर्ट होता है, जैसे पेंटिंग बोलो या अलग अलग एरिया पे लेके, जैसे आप लोग बोल सकते हैं बार्बर बोल सकते हैं. दीज आर द आर्टिसंस एट दैट टाइम. मराठी में उसको 12 बलूतेदार बोलते थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के. जैसे चप्पल सीने वाला था, गोल्ड स्मिथ था, उसके बाद जो परफेक्ट, बहुत अलग अलग टाइप के, ऐसे 12 टाइप के लोग हुआ करते थे उस टाइम पे. वो लोग जो है उन लोगों को अपने प्रॉफिट का 1/5 देना पड़ता था. अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, आर्टिसंस यूज्ड टू पे 1/5 ऑफ देयर प्रॉफिट एज अ टैक्स. Agriculturists were required to pay 1/6, 1/8 or 1/10 of their produce depending upon the circumstances. Agriculturists जो थे उनको एक तो 1/6, 1/8 या 1/10 ऑफ देयर पार्ट, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहता था कि क्या है. अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई या फ्लड आ गया या कुछ नेचुरल कलामिटी हो गई तो उनको कम से कम बोला जाता था, मतलब 1/6. अगर सारी चीजें अच्छी है तो उनको 1/10 पार्ट जो है एज अ टैक्स पे करना पड़ता. हाँ, तो इनकम टैक्स न्यू है कि ओल्ड है? पहले से ही चलता आ रहा है. लेकिन फर्क क्या है कि ये लोग क्या कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सिस्टमेटिक वे से कर रहे हैं. आज के टाइम का जैसा वे है उसके वे से सिस्टमेटिक कर रहे हैं. ओके, नाउ इन मॉडर्न इंडिया टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम in 1960 by Sir James Wilson in order to meet the losses sustained on account of military mutiny of 1857. तुम लोगों को याद है 1857 का मंगल पांडे ने रिबेल किया था? हाँ, मूवी याद है ना मंगल पांडे? इतना तो होगा ना अपना. इसका हीरो का नाम नहीं मुझे अभी याद आ रहा है. आमिर खान. परफेक्ट. तो उस टाइम पे जो मतलब ब्रिटिशर्स को झटका पड़ा था, क्योंकि 1857 का जो मराठी में इसको 1857 से उठाव बोला जाता है. मंगल पांडे ने जो किया था उस टाइम पे
उन लोगों का खर्चा भरवा के लेने के लिए जेम्स विल्सन जो है ना, ये बंदे ने टैक्स इम्पोज करना चालू कर दिया इंडिया में। इनकम टैक्स एक्ट को लाया उसने इंडिया में। समझ में आ रहा है? मतलब उनका यस मैम। खर्चा, उनका जो पैसा बर्बाद हुआ है, उन लोगों को, हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी के टाइप थे, वो लोग यहाँ पे आए, अपने ऊपर राज किए। तो ये उसी सिस्टम से चल रहा था सारी चीजें, कि उन्होंने क्या किया कि उन लोगों को जो 1857 का लॉस है, उन लोगों, ब्रिटिशर्स मतलब उनका जो मेन ये था इंग्लैंड में था, उन्होंने क्या बोला कि ये इंडिया में हुआ है तो इसका खर्चा भी इंडिया के पीपल्स को ही उठाने को बोलो, हम लोग इसका खर्चा नहीं उठाएंगे, इंडियन पीपल हैज टू पे फॉर इट whatever they have done. So James Wilson ने क्या किया, he passed income tax act at that time. Subsequently another income tax were passed during the 1886, 1918 and 1922. मतलब सिचुएशन के हिसाब से इनकम टैक्स को वापस अमेंड करके पास किया गया। Income Tax Act 1922 was the last income tax of British India and remain in force till 1962. लास्ट जो पास हुआ वो 1922 का था और वो 1962 तक लास्ट हुआ। मतलब हमारा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है 1961। समझने की कोशिश करना इस चीज को। नाउ नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकंड। Okay, see ya. In independent India, the Income Tax Act 1922 was replaced with the Income Tax Act 1961, which was implemented with effect from 1st April 1962. And it is still in force. आज भी वो इंडिया में है। इवन आज जो हम इनकम टैक्स पास ऑन कर रहे हैं वो भी उसी का ही पार्ट है। Since 1962, several amendments of far-reaching nature have been made in Income Tax Act by the Union Budget every year. अभी इस चीज को हमेशा याद रखना है कि टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, मतलब इनकम टैक्स का स्पेसिफिकली जो स्लैब्स आते हैं, स्लैब्स मतलब परसेंटेज आते हैं उसके, वो परसेंटेज हम प्रैक्टिकल सम्स में देखेंगे। वो जो स्लैब्स होते हैं वो स्लैब्स हर साल यूनियन बजट में चेंज होते हैं। कई बार कम किया जाता है, कई बार ज्यादा किया जाता है। इट्स अप टू द गवर्नमेंट्स थॉट प्रोसेस कि वो लोग टैक्स स्लैब क्या रखेंगे। लेकिन हर साल ये टैक्स स्लैब जो होता है वो चेंज होता है। जैसे इस साल का टैक्स स्लैब 2021 का टैक्स स्लैब अलग है, 21-22 का टैक्स स्लैब अलग है। तो हम लोग एक ही टैक्स स्लैब को लेके नहीं चल सकते। जैसे यूनियन बजट डिसाइड होगा एवरी ईयर, ऐसे ही इसके टैक्स स्लैब क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। स्पेसिफिकली इनकम टैक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस मैम। ऐसा कोई पॉइंट है कि अभी नहीं समझा है तुम लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, सो डू वन थिंग, हाँ, इंट्रोडक्शन से लेके ब्रीफ हिस्ट्री तक एक बार सिर्फ रीड कर लो। आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, ओके? टेक अ टाइम फास्ट, नेक्स्ट 2 to 3 minutes. हुआ फर्स्ट रीड करके? यस मैम। Yes. नेक्स्ट,
Okay. Can someone tell me the main points of it? Can someone tell me the main points of it? फटाक से. स्टूडेंट्स मेरा आवाज आ रहा है? Yes, ma'am. Can someone tell me the basic points or informative points of it? फटाफट. ये तुम्हारे स्टडी का पार्ट है स्टूडेंट्स, तुम लोगों को खुद को समझ में आना ही चाहिए कि क्या है. बोलो फटाफट. ये कुछ भी नहीं आ रहा है. बोलो जल्दी. Ma'am, income tax is imposed on individuals' income for getting revenue from them by the government. Government uses these Okay. income tax as welfare of the people. And, Okay. So I think so. What I was about to tell you, हर एक को चीज समझिए कि मुझे क्या कहना है. सही है? हाँ समझा. नाउ हम लोग न्यू पॉइंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं. वो पॉइंट तुम लोगों को समझना होगा क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल सम्स का पार्ट होने वाला है. तो अगर ये अब समझा तो ही बाद में समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा. सो आई एम गोइंग टू शेयर अगेन. सामने कुछ दिख रहा है सबको? जस्ट अ सेकेंड. दिख रहा है हेड्स ऑफ इनकम? Yes, ma'am. There are 5 heads of income. Number 1, income from salary. Second one, income from house property. Third one, income from business or profession. Fourth one, income from capital gains. And fifth one, income from other sources. Okay? सब लोग एक साथ बोलेंगे. Number 1, head of income. income from salary. सब लोग. एक ही इंसान यहाँ पे अवेलेबल है. Number 1. Income from salary. Second. Income from house property. लड़के सो गए. Third. Income from business or profession. Fourth. Income from capital gains. Short-term and long-term. Fifth one. Income from other sources. Other sources. लड़के जिंदा हो गए. बोलने के बाद वो जिंदा हो गए. नो प्रॉब्लम. ओके. अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को सीखने जा रहे हैं. ये इंपॉर्टेंट टर्म्स तुम लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि क्या क्या कैसे कैसे. ओके. नंबर 1, असेसी कौन होता है. नंबर 2, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या होता है. थर्ड वन, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है. देन ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है. डिडक्शंस क्या होती है और टोटल इनकम क्या होती है. ये हम लोग 1 बाय 1 अभी अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है. ओके. जस्ट अ सेकेंड. आई थिंक सो यहाँ पे कुछ इश्यू है. जस्ट अ सेकेंड. लेट मी चेक आउट. Fine. No problem. We can go through directly this.
नंबर 1 है who is assessee. Assessee means a person by whom any tax or any other sum of money is payable. Under this act, in simple term, the assessee means taxpayers. सिंपल वर्ड में क्या है? असेसी का सिंपल मतलब है ऐसा पर्सन जो टैक्स पे करने वाला है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. नाउ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. असेसमेंट ईयर क्या होता है एंड प्रीवियस ईयर क्या होता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टूड. ओके, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ बिकॉज इससे बेटर है कि हम लोग डायरेक्टली इसको समझें. इसको हम लोग अब डायरेक्टली समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या. नाउ टेल मी वन थिंग कि हम जब टैक्स की बात करते हैं तो एग्जैक्टली हम टैक्स कैसे पे करेंगे? अगर हम लोग असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर? असेसमेंट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर के बाद आता है. परफेक्ट, एकदम सही जा रहे हो. देन और क्या बोल सकते हो? जैसे मैं फॉर तुम लोगों को एक एग्जांपल इफ सिंपल 2018 एंड 19 2018 एंड 19 हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो 1920 हमारा असेसमेंट ईयर हुआ, द ईयर इन विच वी हैव टू पे आवर टैक्स. अभी हमारा चल रहा है, अभी का ईयर 2021 चल रहा है, सही है? ओके, अगर हम इस Yes. साल टैक्स पे कर रहे हैं तो दिस विल बी कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर. और प्रीवियस मतलब असेसमेंट ईयर 1920 हमारा क्या था? प्रीवियस ईयर था, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियस मनी रिसीव किया है और जिसका टैक्स पेमेंट हम लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे. दैट विल बी कॉल्ड एज योर असेसमेंट ईयर. ओके, असेसमेंट ईयर. यहाँ पे सामने देखो कि तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आने वाले लेक्चर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे. रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होती है? कि इंडिया के अंदर कोई पर्सन रह रहा है या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप या वो इंडिया में कब तक है, ये सारी चीजों को चेक करने के लिए कुछ व्हाट वी कैन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है. वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसको फॉलो करना पड़ेगा. अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है तो ही कैन नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके, अब रेसिडेंशियल स्टेटस के 3 टाइप्स है. एक है रेसिडेंट, दूसरा है नॉन रेसिडेंट एंड थर्ड है रेसिडेंट बट नॉट रेसिडेंट इन इंडिया. देखो, पहला रेसिडेंट. रेसिडेंट मतलब क्या? वो इंडिया में ही रहता है. वो क्या है? इंडिया में ही रहता है. जैसे हम लोग हैं, हम लोग इंडिया में ही रहते हैं. नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट कौन है? जो इंडिया के प्योरली बाहर रहता है. एंड थर्ड है रेसिडेंट बट नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया. रेसिडेंट है लेकिन वो इंडिया में नहीं रह रहा. अगर मैं अपनी बात करूं, अभी के टाइम पे मैं अपनी बात करूं, तो अगर मैं अपने आप को रेसिडेंट बोलती हूँ तो मेरा रूल क्या है? मैं अगर बाहर रहती, मतलब अमेरिका में रहती हूँ, मैं सिटीजन अमेरिका की हूँ, लेकिन मैं इंडिया में आ रही हूँ, तो मेरा स्टेटस क्या है? एंड मैं जॉब के लिए बाहर हूँ. रेसिडेंट मैं इंडिया की हूँ लेकिन मैं जॉब के लिए बाहर हूँ. अभी एक चीज याद रखना कि इंडिया के अंदर जो है हमारा जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है. कुछ कुछ कंट्रीज के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, पता है तुम लोगों को? सिंगल सिटीजनशिप एंड ड्यूअल सिटीजनशिप पता है तुम लोगों को क्या होती है? हाँ मालूम है. सिंगल सिटीजनशिप नहीं मैम, नहीं मालूम है. सिंगल सिटीजनशिप सिंपली क्या होती है कि तुम लोग एक ही कंट्री में रहते हो. अगर तुम लोग दूसरी कंट्री में भी गए लेकिन वो कंट्री तुमको अलाउ क्यों नहीं करेगी? क्योंकि तुम्हारे ओरिजिन कंट्री, तुम जहां से रहते, इंडिया का सिंगल सिटीजनशिप है. इस चीज को याद रखना. मतलब अगर आप लोग इंडिया के रेसिडेंट हो, अगर आपका आधार कार्ड सब कुछ अगर प्रूफ इंडिया का है कि तुम ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इंडिया में हुए हो या बोर्न भी हुए हो, तो आप लोग किसी और कंट्री में जाओगे, वहां पे अगर ड्यूअल सिस्टम नहीं है तो वो आपको अलाउड नहीं करेंगे. जैसे मैं अगर बोलूं कि
कुछ कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी ड्यूअल रेसिडेंशिप है, मतलब अगर आप बेल्जियम में रहते हो, अगर आप कनाडा में भी चले गए तो आपको कनाडा की भी सिटीजनशिप मिलेगी, आपको बेल्जियम की भी सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन कोई अगर कनाडा से इंडिया आया तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका बॉर्न एंड ब्रॉट अप या बॉर्न एटलीस्ट वो जन्म कहाँ पे हुआ है, कनाडा में हुआ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे रेसिडेंसी का इश्यू है कि रेसिडेंट क्या है। एंड अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, याद रखना बहुत छोटी छोटी चीजें, और जब इंटरव्यूज आते हैं, एक मेरी आदत याद रखना, जब भी मैं टीचिंग करती हूँ तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारा एग्जाम तो होता ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम एग्जाम व्हेन यू आर गोइंग टू फेस योर इंटरव्यूज, एट दैट टाइम दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स विल मैटर मोस्ट। बहुत सारी चीजें जो मैटर करेंगी, याद रखना। बिकॉज मुझे मैंने वापी में अप्लाई किया था, बहुत बड़ा कॉलेज है वो, उस कॉलेज में अप्लाई किया था। दे आस्क मी, मतलब उस टाइम पे मैं थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ाती थी, इकोनॉमिक्स, सो आई वाज नॉट नोइंग दैट मच अबाउट इनकम टैक्स। सो द बेसिक क्वेश्चन दे आस्क मी, मींस मेरे टीवाई के बाद 5 साल बाद में उन्होंने मुझे अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछा। दे आस्क मी क्वेश्चन जो अभी तुम लोग देखने जा रहे हो, व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो रेसिडेंट है उसके लिए लीगली क्राइटेरिया क्या है। एंड मुझे पता था कुछ 181 डेज है, तो आई जस्ट पूरे पैनल के सामने बाय मिस्टेकली आई सेड 181 डेज। एंड देन आफ्टर जब मेरे जिन प्रोफेसर्स ने मुझे उसको सजेस्ट किया था, दे सेड दैट हाउ यू कैन से 181 डेज, इट्स 182 डेज, यू जस्ट मिस्ड आउट योर चांस। सो हम लोग घाई गड़बड़ में कितना गलतियां कर देते। जैसे अगर मैं बोल दूं, किसी ने फटाक से पूछ लिया कि इनकम टैक्स एक्ट, तो तुम्हारे मुंह के अंदर फटाक से आना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये सारा ड्रामा 1857 से चालू हुआ, जब मंगल पांडे ने रिबेल किया इंडिया में। तो उन लोगों ने ऐसा करने की वजह से इंडिया के अंदर इनकम टैक्स लाया क्योंकि उन लोगों को हमसे पैसे वसूल करने थे। सो यू शुड एबल टू नो ऑल दिस थिंग। ओके, नाउ रेसिडेंट means a citizen of India who resided in India for a period of 182 days. Word देखो 182 days and more in during previous year. Last year में वो 182 days है या उससे ज्यादा है, 182 days exactly या उससे ज्यादा. His income earned in anywhere the world will be taxable in India. उसका अमाउंट जो है, पैसा जो है, वो कहीं पे भी अर्न किया होगा, लेकिन वो उसका टैक्स सिस्टम इंडिया में ही उसको पे करना पड़ेगा. ये रूल है, याद रखना. और ये मत पूछना कि ये रूल क्यों है, क्योंकि वो रूल को मैंने नहीं बनाया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बनाया. क्योंकि हमारे पास ऐसे महान लोग हैं कि वो जो सीधा पूछेंगे मिस 182 डेज ही क्यों है, क्योंकि टैक्स तो मैंने तैयार नहीं किया ना. ओके, नाउ नॉन रेसिडेंट NRI, income earned in India only will be subject to income tax. अगर नॉन रेसिडेंट पर्सन है, आउट ऑफ इंडिया का कोई भी सिटीजन है, उसका इनकम कब टैक्सेबल होगा, जब वो सिर्फ इंडिया में कमाएगा तभी उसको लगेगा. अदरवाइज इनकम अर्न इन इंडिया, जो भी इंडिया में इनकम कमाएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, अदरवाइज उसको टैक्स नहीं लगेगा. एंड लास्ट वन, रेसिडेंट बट रिसाइडिंग नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया का पर्सन है जो आउट ऑफ इंडिया रह रहा है. Citizen of India who stayed in India for less than 182 days during the previous year, her income arising outside India may also be taxable in India. May also, word याद रखना, may भी हो सकता है, कंपल्सरी होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन may भी ऐसा हो सकता है. Okay, now who is resident of India? It's a revisionary part. Do it fast. चलो फटाफट बोलो, who is resident of India? Student who is resident in India. Resident, The person who is citizen of India. हाँ, but what is the criteria of days? 182 days 2 days. or more in or previous more in year. during previous year. हाँ, अभी हम लोगों का 2021 चल रहा है. अगर मुझे वो रेसिडेंट है कि नहीं चेक करना है, तो मुझे कब का डेटा देखना होगा, उसका 1920 का, 1920 पिछले साल का. Perfect. Now who is non-resident? जो इंडिया के बाहर जो रह आउटसाइड रहे हैं. कंट्री का है, इंडिया का. वो ओरिजिन आउटसाइड कंट्री का है, लेकिन अगर उसने इंडिया में कमाया तो ही इंडिया में टैक्सेबल होगा, अदरवाइज इंडिया में वो टैक्सेबल नहीं होगा. नहीं है. देन
रेसिडेंट होगा। बट नॉन रिसाइडिंग इन इंडिया, will live less than 182 days in India during previous year. लेकिन वो इंडिया का ही रेसिडेंट होगा, उसकी इनकम तो जो उसको टैक्स पे आउट करना पड़ेगा। मे बी नो 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 मे बी नॉट कंपल्सरी, डिपेंड ऑन कंडीशन कि उसका इंडस्ट्री अगर है तो वो इंडस्ट्री इंडिया का है कि आउटसाइड इंडिया का है, क्योंकि याद रखना ये इंडस्ट्री का भी एक पार्ट होता है कि वो इनकम टैक्स कहाँ पे करेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा हेड ऑफिस एक जगह पे होता है, मतलब एक कंट्री में होता है, और हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसी और कंट्री में होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज पता है ना कि वो अपना पैसा बचाने के लिए ऐसा करते हैं, पता है कि नहीं पता है स्टूडेंट्स, महान आत्माओं? हाँ मैम पता है। क्या क्या पता है? हेलो, क्या पता है? ये बोल के भाग नहीं जाए, पता है इसको मैम, पता है। बताओ। नसीब, ऐसे कुछ माना करो कि नहीं पता है। ओके, आधे लोग तो सो रहे होंगे क्योंकि 8-9 बजे का टाइम है, तो आधे से ज्यादा जब चिल्लाऊंगी तब पता चलता होगा। ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो सारी चीजें हैं ये कैसी है। तुम लोग जब बात करते हो कि लेबर कंट्रीज जो होती है जिनके पास ज्यादा लेबर अवेलेबल होता है, एंड ऐसी कंट्री जो डेवलप्ड होती है, वो लोग क्या करते हैं कि अगर डेवलप्ड कंट्री है, अगर उनको कोई इंडस्ट्री ओपन करनी है तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पे लेबर सस्ते हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल सस्ता है, ऐसे कंट्रीज में जाके वो लोग क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन एरिया ओपन कर देते हैं। मतलब क्या होता है, वो हेड ऑफिस तो अपने कंट्री में रखेंगे, जैसे अमेरिका का एग्जांपल ले लेती हूँ, अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री, तो वो कंट्री क्या करती है कि अपने यहाँ पे हेड ऑफिस रखेगी, लेकिन प्रोडक्शन एरिया इंडिया में डालेगी, क्योंकि यहाँ पे लेबर ज्यादा मिलते हैं और सस्ते लेबर मिलते हैं, सो दे आर यूटिलाइजिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है कि वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहेगा कि उन्होंने हेड ऑफिस कहाँ पे है या उसका एक्चुअल वर्किंग एरिया कहाँ पे है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन एंड टोटल इनकम। अभी ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है, इट कंप्राइजेस सम ऑफ द इनकम अर्न थ्रू ऑल द 5 हेड्स ऑफ इनकम। हमारे जो पांचों हेड है उसके अंदर का आएगा। स्टूडेंट्स ये कट हो जाएगा, अभी लास्ट 30 सेकेंड चल रहे, तो मुझे जितना पॉसिबल हो रहा है मैं उतना करवा रही हूँ। जीटीआई प्योरली जो 5 अलग अलग हेड्स है वो आएगा। डिडक्शन, उसके अंदर अलग अलग तरीके के डिडक्शन होते हैं, सेविंग्स के ऊपर डिडक्शन होते हैं, डोनेशन के ऊपर डिडक्शन होते हैं। एंड लास्ट वन, जब ग्रॉस टोटल इनकम से हम डिडक्शन माइनस करते हैं तो यू विल गेट योर टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम ऑफ द असेसी। ये जो फाइनल इनकम आती है इसी के ऊपर टैक्स लगता है। फर्स्ट जीटीआई, 5 हेड ऑफ इनकम ऐड होंगे, नेक्स्ट डिडक्शन, एंड जीटीआई माइनस डिडक्शन इज इक्वल टू योर टोटल इनकम। ओ okay, now we are closing